Hello everyone, welcome to today's video. In this video I'm going to talk about IELTS listening. Listening के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. The most common problem is they cannot listen properly. And here in this video I'm going to talk about few tips that can help you to grab 9 out of 9 band in listening also. And yes, it is true. In listening one can get 9 out of 9 because it is the easiest module and बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले भी 9 out of 9 listening में से लिए हैं. For 9 you have to score either 39 or 40. If you want to achieve this much score, then you need to have a very great level of English. First of all, your first 10 fill in the blanks or first 10 questions and last 10 questions should always be correct. After that, you should also focus on MCQs a lot. So this is for 9 out of 9. Let's talk about few tips that every one of you should need to follow. First is listen more English. Why do we face problem in listening is that we are not very much familiar with this language. We are familiar with Punjabi, Hindi or any language that you are speaking in your area, but हम English से इतने ज़्यादा familiar नहीं होते हैं. You need to listen more and more English because आप अगर किसी चीज़ को ज़्यादा सुनेंगे तो वो आपको तभी समझ आती है. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नया गाना सुना है, फर्स्ट डे आपको वो गाना बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, बट नेक्स्ट डे अगर आप उसको 2 या 3 बार सुनते हो, देन एट दैट टाइम यू गेट टू लिसन द लिरिक्स और यू गेट टू अंडरस्टैंड द लिरिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉन्ग. सो सेम इज विद इंग्लिश. यू हैव टू लिसन इट विद मोर, यू हैव टू लिसन इट मोर, स्पेंड मोर टाइम ऑन इट एंड कन्वर्स इन इंग्लिश एज मच एज यू कैन विद योर रिलेटिव्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, बिकॉज जब आप सुनेंगे उनकी इंग्लिश को भी आपको भी फिर पता चलेगा कि बोली कैसे जाती है इंग्लिश. नेक्स्ट, एक्सेंट. आई हैव रिटन एक्सेंट हियर इज बिकॉज समटाइम्स इन लिसनिंग देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेंट. फॉर एग्जाम्पल आई एम एन इंडियन. अब मैं जो इंग्लिश बोलूँगा वो अलग तरीके से होगी. कोई बंदा न्यूजीलैंड से है, ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश इन एनी अदर वे. If someone is from Australia or Canada, he will be speaking language of English in any other way. So you have to listen different accents. For example, if I talk about the word advertisement, in British we say, I think so, advertisement, but in American English we say advertisement. So बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है एक्सेंट का भी. आपको अलग अलग एक्सेंट को सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अलग जगह के लोग कैसे इंग्लिश को बोलते हैं. Because in listening you have to answer to a number of accents. अलग अलग accent के लोग उसमें बोलते हैं. So आपको accent का भी ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से वो इंग्लिश को बोल रहे हैं और किस एरिया से इंग्लिश को बोल रहे हैं. Next, one biggest mistake is spellings. I think most of you would have faced this problem at some point. Because spellings play a very vital role in IELTS listening. If you have written the spelling wrong, then your answer would be marked as incorrect by sure. So आपको spellings पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. आपके spellings अच्छे से दिखने चाहिए कि आपने लिखा क्या है. अगर आप कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो E और L को सीधा सीधा लिखते, वो E को भी ऐसे लिख देते हैं, L को भी ऐसे लिख देते हैं, पता नहीं लगता. A और O को भी ऐसे लिख देते हैं कहीं. सो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए इनके अंदर. इससे सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप कैपिटल्स के अंदर लिखें. राइट इन कैपिटल्स लाइक A, B, C, इस तरीके से कैपिटल लेटर्स के अंदर आप आंसर लिखें बिकॉज इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू टू राइट ऑल्सो एंड ईजी फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. सो राइट क्लियरली सो दैट the one can easily check your answers. Moreover, इसकी checking computerized होती है. So computer में जो feed किया गया उसने उसी तरीके से check करना है. You have to follow the algorithm then. Next is sign and symbols. I have seen a lot of times that in listening around 2 or 3 questions are there in which you have to use $sign or you would say euro, pound, these kind of symbols. And sometimes these symbols are written over there in the question also. So you have to keep in mind whether to write it or not. If it is not written, then आपको इसे लिखना होगा. कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर उन्हें आंसर दिया गया $10, वो डॉलर का साइन भी डाल देंगे, 10 लिख के आगे डॉलर्स भी लिख देंगे.
सो आपको ये चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करना, या तो ये वाला या तो ये वाला, हमेशा ये वाला साइन डालिए। लिखने का कोई भी फायदा साथ में नहीं होता है, आपको इस तरीके से लिखना है। मोर ओवर, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डॉलर साइन गिवन है, देन यू डू नॉट नीड टू यूज दिस। Keep this in mind because this can make your 2 to 3 answers incorrect, which will be resulting in half band up or down in your score. Last is wait. Always wait. Listening is a game of waiting. What we do is, if we have listened one, for example, I'm doing MCQs, and the speaker has talked about option B. I have listened that कि वो कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं ऑप्शन बी के बारे में, मैं यही सुन के ऑप्शन बी को आंसर लगा दूं तो वो बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। आपको यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से पहले सुनना है कि वो बातचीत क्या कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड्स को मैच कीजिए, वो जिस बारे में भी बात कर रहे हैं, देन आप MCQ का आंसर लगाइए वेट करके। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट कि जो लास्ट ऑप्शन वो बोलते हैं दैट इज द करेक्ट आंसर। इफ यू आर नॉट हैविंग टाइम, टाइम निकल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि MCQs में वो क्या कर रहे हैं, तो तुक्का लगाना है, तो तुक्का भी दिमाग से लगाइए। जो लास्ट ऑप्शन वो बोलेंगे, लाइक उन्होंने लास्ट में बात कर दी ए के बारे में, देन ट्राई टू मार्क द आंसर एज ए। इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। एंड काफ़ी बार क्या होता है कि वो लाइक फिल इन द ब्लैंक्स जा रहे हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर वो पहले कुछ बोल देते हैं, फिर बाद में कुछ बोल देते हैं। इस चीज़ को भी दिमाग में रखिए, बिकॉज वो आंसर्स को थोड़ा बहुत शफल आउट कर देते हैं एंड लास्ट पे वो सही आंसर बताकर फिर जाते हैं। ट्राई टू स्टे एंगेज्ड इन दैट टॉक, उनके साथ साथ चलिए, वो जो जो बोल रहे हैं वैसे वैसे पेंसिल लेकर जाते रहिए। ऐसा नहीं है कि वो बोल कुछ रहे हैं आप कहीं चले गए हो। एंड मोर ओवर, ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस इन एडवांस ऑल्सो. So I would think that this video would have been of great help for you, and in the upcoming videos we'll be talking about other modules also, so stay tuned on the channel. Thank you.